Hello my dear friends, I am Professor Vayam Khan and this is the part 1 of our new unit number 2, that is phase diagrams of subject materials and metallurgy. In today's video we are going to study the phase diagram. What do you mean by phase diagram? What are the various terms involved in phase diagrams? Then what is Humy-Rodriguez rules of solid solution? What are the different types of solid solution and one of the types of phase diagram? And before proceeding to that, I'll request you to subscribe to my channel, like this video and share this video. Let us start. What is a phase or an equilibrium diagram? Phase diagram most of the time is also referred as equilibrium diagram. Now before proceeding to phase diagram, let us understand again what is meaning of phase. In last chapter we have studied what is the meaning of phase, what is the meaning of system, what do you mean by variable, what's a component, and what do you mean by an alloy. So let us just revise it quickly. The phase or any phase is a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of the system which is under study. Okay, so phase is a homogeneous, physically distinct and mechanically separable part of the system which we are going to study. Okay, like a solid phase, like a gaseous phase or a liquid phase. So liquid is physically distinct, it is homogeneous and it is a mechanically separable part of the system because you can distinguish between a liquid and a solid. Okay, so similarly there are number of phases itself in solid, itself in liquid, and these internal phases are homogeneous, they are physically distinct and they are mechanically separable. Okay, so phase or equilibrium diagram is a type of chart which is used to show conditions like pressure, temperature, volume, etc., at which thermodynamically distinct phase such as solid, liquid or gaseous states occur and coexist at equilibrium. It is this type of diagram, this type of chart is used to show what is the phase at a specific temperature, at a specific pressure, at a specific volume, okay, with a specific composition when it is at equilibrium. Okay, phase diagram ये बताता है कि सिस्टम में एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर, स्पेसिफिक टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पर कौन सी फेज प्रेजेंट है एक सिस्टम में. जैसे अगर मैं एक आधा अलॉय का सिस्टम कंसिडर करता हूँ, लेट अस कंसिडर एन अलॉय. एक अलॉय है जो ए और बी को मिला के बनाया गया है. ओके, इस ए और बी के मिक्सचर को हम अलॉय बोलते हैं. तो इस अलॉय की सिस्टम को जब हम स्टडी कर रहे हैं, उसको स्टडी करते वक्त हम क्या करते हैं कि इस ए और बी के अलॉय को पहले तो लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा, उसके बाद में ए को पहले लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा, बी को भी इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा और उसको मिक्स किया जाएगा. उसके बाद में इसका सॉलिडिफिकेशन होगा. इस सॉलिडिफिकेशन के दौरान हम क्या करते हैं, कई जगह पर कई पॉइंट्स पे हम इस अलॉय को ट्रेस करते हैं. ट्रेस करते हैं मतलब क्या करते हैं कि जैसे कि इसका मेल्टिंग पॉइंट है 500 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो 500 से रूम टेम्परेचर तक मैं क्या करूँगा, 400 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रीडिंग्स लूँगा, 450 पे कुछ लूँगा, 350 पे लूँगा, 300 पे लूँगा, 350, 250, 200 ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स पर मैं रीडिंग्स लूँगा. ये अलग अलग टेम्परेचर पर मैं क्या कर रहा हूँ, रीडिंग्स ले रहा हूँ. ये रीडिंग्स लेते वक्त मैं इस अलॉय में जो कंपोजिशन इस्तेमाल कर रहा हूँ उस कंपोजिशन को भी क्या करूँगा, वैरी करूँगा. और ऐसा वैरिंग कंपोजिशन और ऐसा वैरिंग टेम्परेचर के साथ में मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, जिस ग्राफ की मदद से इन फ्यूचर मतलब आने वाले फ्यूचर में जब मुझे इस अलॉय के बारे में कुछ स्टडी करना है तो मैं एक आधे स्पेसिफिक पॉइंट पर अगर स्टडी कर रहा हूँ, जैसे 200 डिग्री सेल्सियस और 8% ऑफ बी पे अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मैं वो पॉइंट उस डायग्राम पे मार्क करूँगा और वहाँ पर मैं ढूंढूंगा
कि इस पॉइंट पर अगर कौन सी फेज प्रेजेंट है। जैसे अगर उस पॉइंट पर सॉलिड है मेटल तो मैं बोलूँगा कि उस पर सॉलिड फेज है, अगर वहाँ पर लिक्विड है तो वो लिक्विड बोलूँगा, अगर वहाँ पर गैसियस है तो मैं उसको गैसियस फेज बोलूँगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एट सम टेम्परेचर एंड विथ सम स्पेसिफिक कंपोजिशन वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द फेज विच इज़ एग्जिस्टिंग इन एन अलॉय। ओके, नाउ हियर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द स्टेट ऑफ बैलेंस। यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, इट इज़ बैलेंस्ड स्टेट। Okay, what is the meaning of balanced state here? Yes, now here as equilibrium refers to the state of balance, that means which exists or which tends to be attained between the phases in the structure of an alloy after a physical or a chemical changes। जब केमिकल और फिजिकल चेंजेस होंगे उसके बाद वो सिस्टम कब इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये हम यहाँ पर रेफर करना चाह रहे हैं। ओके, नाउ a phase diagram has temperature on its y axis। इसका y axis जो रहेगा it will show temperature and its x axis or you also called it as abscissa। so abscissa जो है तो इस पे रहेगा हमारा weight percentage। okay, these phase diagrams are used to find out the amounts of phases or phase existing in a given alloy at a composition and temperature। ओके, सो इसको हम आगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ अ फेज डायग्राम। दिस इज अ आयन कार्बन फेज डायग्राम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आयन कार्बाइड और आयन कार्बन डायग्राम। ओके, बिकॉज इट इज़ अ डायग्राम विच इज़ मेड फॉर स्टील एंड कास्ट आयन। आयन और कार्बन क्या मिलता है, स्टील बनता है या फिर कास्ट आयन बनता है। ओके, सो इस साइड में आयन है, दैट मीन्स द मोर the value the more the point is nearer to this Fe side, it means the more amount of iron is present in this alloy। okay, इस साइड में हम कार्बन जो है वो रख रहे हैं, मतलब इस साइड में कार्बन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, इस साइड में आयन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। ओके, सो दिस इज योर वेट परसेंटेज। जैसे यहाँ पर 0.5 है, सो दैट मीन्स 0.5 यहाँ पर कार्बन मिलाया गया है और बचा हुआ जो अमाउंट है दैट इज़ योर iron। so your 99.5% is iron and remaining 0.5% is your carbon। similarly here 3% means 3% carbon है, बचे हुआ क्या है, iron है। so this is a type of phase diagram। इसमें अलग अलग phases है, जैसे यहाँ पर liquid देख रहे होंगे आप, यहाँ पर डेल्टा आयन देख रहे होंगे, यहाँ पर गामा आयन देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑस्टेनाइट, सीमेंटाइट, फेराइट, देन यहाँ प्योर लाइट, इस मिक्सचर को प्योर लाइट बोला जाता है, परलाइट भी बोलते हैं जिसको हम। ओके, सो ये अलग अलग फेजेस हमको अलग अलग टेम्परेचर पे और कंपोजिशन पे देखने मिल रही है। जैसे कि ये लिक्विड है, तो ये लिक्विड कहाँ से बनना शुरू हो रहा है, फ्रॉम दिस टेम्परेचर। ओके, सो इट्स अराउंड 1150 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से लिक्विड में कन्वर्जन होना शुरू हो रहा है। ओके, वेयर एज अगर यहाँ का कंपोजिशन देखें सो 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लिक्विड में कन्वर्जन होना शुरू हो रहा है। इसके नीचे सॉलिड फेज़ है, सॉलिड फेज़ में भी पहली जो फेज़ देखने मिल रही है दैट इज़ डेल्टा आयन, देन योर गामा आयन, सबसे नीचे देखने मिल रही है फेराइट। सो लाइकवाइज एट अ स्पेसिफिक परसेंटेज एंड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर आई कैन आइडेंटिफाई what is the phase which is present in that alloy। For example 2%, let us say 2% and 1150 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी फेज प्रेजेंट है। सो मैं क्या करूँगा, इस 2 डिग्री से वर्टिकल लाइन बनाऊँगा और 1150 से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊँगा। ओके, ये जो पॉइंट रहेगा इस पॉइंट पे मुझे फेज पता करना है। ओके, सो हियर what will the phase, so here the phase of austenite and cementite is starting। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट नाम की फेज़ एग्जिस्टिंग है। अगर मुझे 3% और 1400 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी फेज़ एग्जिस्टिंग है ये पता करना है, सो आई विल जस्ट मार्क 3% वर्टिकली, 1400 हॉरिजॉन्टली, एंड दिस पॉइंट द फेज विच एग्जिस्ट हियर इज लिक्विड। ओके, तो सच अ काइंड ऑफ फाइंडिंग ऑफ फेजेस we can do it with the phase diagram। okay, now let us see some of the definitions that we have previously studied। so there is solid solution। solid solution is nothing but a kind of alloy which is having same structure of solute
एज वेल एज सॉल्वेंट। मतलब जो अलॉइंग एलिमेंट है जिसको आप मिक्स कर रहे हैं पैरेंट मेटल में, तो वो पैरेंट मेटल और अलॉइंग मेटल इन दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है। ऐसे टाइप के अलॉय को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, अब ये दो टाइप के हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशनल है और दूसरा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये पैरेंट मेटल है, ये पैरेंट मेटल की जगह पर अलॉइंग मेटल क्या कर लेगा, उसकी जगह ले लेगा, सिंपली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ग्रीन था पहले, तो ये ग्रीन को सरका दिए बाजू में, और यहाँ पर सॉल्यूट एटम ने क्या किया या अलॉइंग एलिमेंट ने क्या किया, उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लिया। जैसे हमारे एक आधे क्रिकेट मैच में या फुटबॉल मैच में कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है किसी की जगह पर, सिमिलरली यहाँ पे एटम की जगह पर दूसरा एटम जगह ले लेगा। तो दैट इज़ योर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। देन देर इज़ इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब जो दो एटम्स है ओरिजिनल मेटल के, मतलब सॉल्वेंट मेटल के, इनके बीच का जो स्पेस है दैट स्पेस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द सॉल्यूट या जो अलॉइंग एलिमेंट है उसके एटम से। मतलब जो अलॉय आप ऐड कर रहे हैं, जिसको ऐड करने वाले हैं जिसमें, तो उसकी खाली जगह पर वो क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई होगा। ऐसे सॉलिड सॉल्यूशन को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। देन देयर इज सॉलिड सॉल्युबिलिटी। सो सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज नथिंग बट a specific limit for any alloying system to add alloying element into the parent metal to get the properties of a resultant alloy। एक आधे पानी में अगर मैं सॉल्ट मिक्स करता हूँ, जैसे 1 कप पानी है तो इसमें मैं कुछ ही लिमिट तक सॉल्ट मिक्स कर पाऊँगा, बिकॉज देयर इज सॉल्युबिलिटी लिमिट। वो उतना ही अमाउंट का सॉल्यूबल हो सकता है। सॉल्ट जो है पानी में अगर 1 चम्मच डाला जाए तो 1 कप पानी में 1 चम्मच डालो, सॉल्ट मिक्स होगा, 2 चम्मच डालो, मे बी मिक्स होगा, तीसरा जो डालो मे नॉट गेट मिक्सड कम्प्लीटली। क्यों नहीं मिक्स होगा? बिकॉज देर इज सम लिमिट ऑफ दैट सिस्टम टू एब्जॉर्ब दैट सॉल्ट। मतलब क्या है, देर इज सम लिमिट ऑफ पैरेंट मेटल टू गेट अटैच्ड टू द अलॉइंग एलिमेंट। ओके, सो सच ए काइंड ऑफ लिमिट इज कॉल्ड एज सॉलिड सॉल्युबिलिटी। इस लिमिट को क्या बोलती है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ह्यूमी-रोदरीज रूल्स ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी। ये जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी हमने देखे ना कि एक मेटल में दूसरा मेटल कुछ लिमिट तक ही सॉल्युबल हो सकता है। ओके, सो इस लिमिट को डिफाइन करने के लिए हम ह्यूमी-रोदरीज रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस ह्यूमी-रोदरी रूल्स कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स और मोर देन 2 मार्क्स। ओके, सो ये ह्यूमी-रोदरी रूल्स क्या बताते हैं कि एक सॉलिड सॉल्यूशन में जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट है वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो फर्स्ट फैक्टर दैट डिफाइंस द सॉलिड सॉल्युबिलिटी इज एटॉमिक साइज फैक्टर। ओके, एटॉमिक साइज फैक्टर मतलब क्या, एक आधा एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट है ए, इसकी एटॉमिक साइज कुछ इस तरीके से है। दिस इज एटम ए, ये एटम ए है, और एक दूसरा एलिमेंट है जो कि है से दिस इज से देयर इज अनदर एलिमेंट विच इज एलिमेंट बी विच इज स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर्ड विद द ए एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पर साइज में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। सो दिस वन इज लार्जर, दिस वन इज स्मॉलर। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एटॉमिक साइज डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज डिफरेंस, बिकॉज हियर साइज ऑफ एटम ए इज मोर देन द साइज ऑफ एटम बी। नाउ इफ दिस डिफरेंस इज मोर देन 50%, अगर ये डिफरेंस 15% से ज़्यादा होता है, मतलब अगर इनकी साइज़ का डिफरेंस लिया जाए और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाए और वो परसेंटेज अगर 15% से ज़्यादा रहता है, सो दैट मीन्स दीज एलिमेंट्स हैव अ लिमिटेड सॉल्युबिलिटी। ये एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे में लिमिटेड सॉल्युबल रहेंगे, जैसे उसके कुछ ही पार्ट्स सॉल्युबल हो सकते हैं। वेयर एज यही डिफरेंस अगर 15% से लेस होगा, सो दैट मीन्स दे आर फेवरेबल टू सॉलिड सॉल्युबिलिटी, मतलब वो उतने ही ज़्यादा एक दूसरे में सॉल्युबल रहेंगे। सो एक्सटेंसिव सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन occurs only if the relative difference between atomic diameters of the two species
इज लेस देन 50%, 15%। अगर मिलाने वाले एलिमेंट का साइज और पेरेंट एलिमेंट का साइज में 15% से ज़्यादा डिफरेंस रहेगा तो आपकी जो सॉल्युबिलिटी है इट विल बी वेरी लिमिटेड, बहुत कम उसमें सॉल्युबल होगा बी। ओके, बी विल बी वेरी लेस सॉल्युबल इन ए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक साइज फैक्टर। ओके, नाउ दिस मिसमैच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 15%। अब ये कैसा निकालते हैं, तो रेडियस ऑफ सॉल्यूट, इसका रेडियस माइनस रेडियस ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सो ये अगर 15 से कम है सो इट इज़ गुड। ओके, अगर 0% का डिफरेंस है दैट मीन्स दोनों की साइज सेम है, सो दैट मीन्स दे आर मोर soluble in each other, they are more soluble. Okay, so second thing is crystal structure rule, or it is also called as crystal structure factor. For appreciable solid solubility, मतलब अगर आपको solid solubility ज़्यादा चाहिए तो हमारे जो crystals है या जो हमारे elements है इन दोनों का crystal structure जो है वो कैसा होना चाहिए, identical होना चाहिए। आइडेंटिकल होना चाहिए मतलब सेम होना चाहिए। ओके, अगर ये आइडेंटिकल नहीं है सो देर इज सम लिमिट टू सॉलिड सॉल्युबिलिटी। मतलब ए जो है ये अगर BCC टाइप का है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टाइप का है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरा जो एलिमेंट B है वो भी कैसा हो, BCC टाइप का हो। ओके, सो इट शुड ऑल्सो बी BCC। सो दिस इज हैविंग मोर सॉलिड solubility, it is having more solid solubility। और वही अगर B फेस सेंटर्ड क्यूबिक है या इससे कोई और है अदर देन BCC है, so that means it is very limited, it will be the solid solubility will be very limited। okay, this is crystal structure factor or rule। then third one is valency rule। ओके, नाउ अ मेटल विल डिजॉल्व इन अ मेटल ऑफ हायर वैलेंसी। अब ए जो है ये पेरेंट मेटल है, सो दिस ए शुड हैव हायर वैलेंसी देन द बी। वैलेंसी मतलब जो वैकेंट रहते हैं ना वो वैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। सो जितनी ज़्यादा ए की वैलेंसी रहेगी उतना ज़्यादा वो क्या कर सकता है, बी को एब्जॉर्ब कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन फॉर्म मोर सॉलिड सॉल्यूशन। सो the solid solubility is limited also with the valency. If a metal of higher valency to a greater if a metal with higher valency if a metal with lower valency is added to a metal of higher valency, then they are tend to form more solid solution। okay, whereas if you add higher valency element to a lower valency element, then there is a limit to solid solubility। so the solute and solvent atoms should typically have the same valency in order to achieve the maximum solubility। okay, इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों की solubility जो है दोनों की वैलेंसी जो है we say that they should be of same valency। okay, next one is the electronegativity rule or chemical affinity factor। chemical affinity is nothing but chemical attraction with the other element। so as further the elements in periodic table they are tend to attract each other in more amount। जितने दूर रहेंगे वो एक दूसरे से periodic table में उतने ज़्यादा वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो दैट इज कॉल्ड केमिकल एफिनिटी फैक्टर। तो जितने ज़्यादा दूर रहेंगे उतने ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स दे हैव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस which is close to 0 gives which if they have electronegativity difference which is close to 0 they give maximum solubility। जितने दूर रहेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है उन एलिमेंट्स का कंपाउंड फॉर्मेशन का। ओके, सो दैट्स वाई दे शुड बी क्लोजर टू ईच अदर, hence the electronegativity difference will be 0 which will give us maximum solubility। उसकी वजह से क्या होगा कि जो सॉलिड सॉल्युबिलिटी है वो हमको ज़्यादा देखने मिलेगी। ओके,
So therefore the electronegativity rule says that they should be nearer to each other in the periodic table. Okay, so this is about the Hume-Rodriguez rules. Then this is the next one is the types of phase diagrams. So we have 4 different types of phase diagrams that is to be studied, and this is first one is isomorphous system, second is eutectic, third one is partial eutectic, fourth one is layer type system. So we'll begin with isomorphous system. Now whenever I'm saying isomorphous, that means there is 2 elements present in it, and this type of diagram is obtained for the materials which are completely soluble in liquid as well as solid state. ऐसे एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में भी एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स्ड रहते हैं, साथ ही साथ में सॉलिड स्टेट में भी एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि सॉल्ट और वाटर है. तो सॉल्ट और वाटर अगर एक दूसरे में मिक्स किया जाए लिक्विड स्टेट में और उसको सॉलिड बनाया जाए, सो दे आर स्टिल आइस, बराबर है. सो वो अलग अलग नज़र आते हैं कि हमको फेजेस नहीं. सो सच अ काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड एज आइसोमॉर्फस सिस्टम्स. ये दोनों भी मेटल्स लिक्विड में भी मिक्स रहेंगे एक दूसरे के साथ ही साथ में सॉलिड फेज में भी मिक्स रहेंगे एक दूसरे के साथ में. ओके, अब सॉलिड फेज में एक दूसरे के साथ जब वो मिक्स रहेंगे, सो दैट इज दे आर नॉट शोइंग 2 डिफरेंट सॉलिड्स, दे आर शोइंग ओनली 1 सॉलिड स्टेट. सो ऐसे जो है तो वो है कॉपर निकेल है, देन योर सिल्वर एंड गोल्ड है, देन योर गोल्ड एंड कॉपर है, देन योर टंगस्टन एंड वैनेडियम है. दे शो आइसोमॉर्फस सिस्टम. सो योर आइसोमॉर्फस सिस्टम ऑफ कॉपर निकेल अलॉय सिस्टम, कॉपर निकेल की जो है तो दिस इज शोन हियर. ये टेम्परेचर दिखा रही है, इस साइड में परसेंटेज है निकेल का. सो दिस साइड 100% कॉपर इज देयर, दिस साइड 100% निकेल इज देयर, एंड सच काइंड ऑफ सिस्टम्स आर ऑफ लूप टाइप. ये जो सिस्टम्स है ये कैसी है, लूप टाइप सिस्टम रहती है. ओके, सो यहाँ पर अगर मुझे बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट पे अगर मुझे फेज पता करना है कौन सी है, ओके, सो आई हैव टू यूज लीवर रूल एंड दिस फेज डायग्राम इट शुड बी प्रेजेंट विथ मी. सो आई कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फेजेस एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट. लाइक जैसे कि 20% निकेल पर और 1300 डिग्री सेल्सियस पर कौन सा फेज प्रेजेंट है. सो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कौन सा है, लिक्विड है, बिकॉज अबव दिस लाइन both the elements are in liquid form, and below this line, the second line which is below it, below this line all the element which are in it is present in solid form. So such a kind of line is this line, this specific line where from which from below from this line इसके नीचे जो metal है, if it is in solid state, then this kind of line is called as solidus line, and the line above which the metal is in liquid state, then such a kind of line is called as liquidus line. Okay, and in between these 2 lines there is some portion where metal or alloy is present in liquid as well as solid state. लिक्विड प्लस सॉलिड स्टेट में रहेगा. अब सॉलिड स्टेट कौन सी रहेगी, तो सॉलिड स्टेट रहेगी कॉपर और निकेल का अलॉय प्लस liquid of copper and nickel. So alpha is the solid state of your copper and nickel alloy, and here liquid is the mixture of liquid copper and liquid nickel. Okay, so this is an example of isomorphous system. Okay, so this was all about today's video. So we'll see more types of phase diagram in next video. Till then, please stay safe, stay at home and keep learning. Thank you.